Another very important relevant chapter in the terms of Income Tax Act, specifically relevant in terms of revenue generation for the government, because it is one of the most important head under the Income Tax Act, from which a lot of revenue ascribes to the government, as also it is one of the most complex heads as far as computation of income is concerned. So this chapter is dealing with profit and gains of business or profession, and the sections that are covered under this chapter specifically is ranging from section 28 till section 44 db. So today we will be starting with the basic concepts of this head specifically. So the first and foremost thing is what exactly is business, as well as what exactly is profession, because as we have talked, the name of the chapter is profit and gains from business or profession. So we need to understand beforehand what exactly entails the term business and what exactly entails the term profession. So section 2 subsection 13 of the act, it basically talks about the word business, and it says that business simply means any economic activity which is carried out for earning profits. So literally it covers all type of economic activities that are available for carrying out profit, or that are carried out in terms of commercial transactions for earning profit or making a gain out of them. So furthermore, it states what this section 2 subsection 13 says. Furthermore, it clearly defines it exactly verbatim in the form that any trade or commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. So this qualifies to be that in the nature of the term business. So if we go by the exact definition or the context or the wording of this phrase specifically, which has been used by the tax law in defining the notion of business under this section 2 subsection 13, it clearly spells out that any kind of trade being carried out or commerce or manufacturing of anything of a similar nature qualifies to be included in the term business. Now, one more important thing is related to this dimension of business only, is that it should not be, if we refer something to be a business, it does not mean that it should be in a repetition in a nature, that the same activities should be carried out in a sequence in order to qualify an activity to be a business. Similarly, no continuity of certain things or certain activities is mandatory for qualifying any activity to be a बिजनेस एक्टिविटी. इट कुड बी अ वन शॉट एक्टिविटी एज वेल. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ हों या वो एक्टिविटी परमानेंटली कैरी आउट करी जाए फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट शुड बी इन रेपिटेशन, एंड दैट्स ओनली it will qualify to be a business. Even if it is an isolated activity, even if it is a single out transaction, it could qualify to be included in the term of business. ठीक है. So the most another important wording in this text is adventure or concern in the nature of trade or commerce and so on. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. It says that any kind of adventure or concern or initiative which is in the nature of trade or commerce can be taken out to be a business transaction. Such an activity, such an economic activity could qualify to be a business transaction. So there need not be sequential activities, and there need not be repetition. So two things are clear. No repetition is required for any economic activity to qualify to be a business. It could be a one-shot activity. And furthermore, no continuity is mandatory in order to qualify any activity to be a business transaction only. ज़रूरी नहीं वो permanently long term के लिए की जाए या वो बार बार repeat करी जाए. It could be one-shot activity as well. Then in the words of Justice S.R. Das, he denotes the word or refers that the word business denotes some real, substantive or systematic organized activity which is carried out with a specified set purpose. So this is how Justice R.S. Das from the Supreme Court, Honorable Supreme Court, he defined this activity specifically. अब ये तो हो गया बिजनेस की बात.
what exactly is profession? Profession is being dealt with under section 2 subsection 36. so जो profession को जो डील करता है वो है section 2 subsection 36. बिजनेस के लिए कौन सा है? सेक्शन सेम है दोनों के केस में, सेक्शन 2 ही डील करेगा जहां पर ये दोनों टर्म्स डिफाइन की गई हैं. बट बिजनेस डिफाइन किया गया है अंडर सबसेक्शन 13, जबकि प्रोफेशन डिफाइन किया गया है अंडर सबसेक्शन 36. अब प्रोफेशन होता क्या है एंड हाउ डज इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द टर्म बिजनेस और द नेचर ऑफ बिजनेस? A profession is any occupation that requires either purely, that is complete intellectual skills, or it may be having manual skills, but predominantly which is controlled by the intellectual skill. So the fundamental thing that will differentiate between a business and profession is the employability or deployability or use of intellectual skill for carrying out such economic activity. If the occupation concerned, it requires or depends heavily on intellectual skill, or even if it is carried out through a manual skill, but that has been backed by, or that needs to be backed by, a strong intellectual skill of the operator, of the person performing that activity or carrying out such activity, that will qualify to be a profession rather than a business. For example, lawyer हो गया, doctor हो गया, surgeon हो गया, ऑथर ऑफ अ बुक, टीचर हो गया. अब हर कोई तो बुक नहीं लिख सकता ऑथर. इट इज़ ओनली पर्सन हु इज़ हैविंग इंटेलेक्चुअल स्किल कैन राइट अ पर्टिकुलर बुक ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ नॉलेज. ठीक है. सिमिलरली हर कोई केस नहीं लड़ सकता, हर कोई अकाउंटेंट नहीं बन सकता, हर कोई टीचर या एक सर्जन नहीं बन सकता. इट रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्किल और इवन मैनुअल स्किल. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सर्जन, ही परफॉर्म्स द थिंग्स मैनुअली, बट that things is backed by, strongly backed by intellectual skill of that person. अब ये नहीं ना कि उसको सर्जन का काम तो वही है कि he has to make some stitches, he has to perform surgeries by manually by using surgical instruments, but काम वो surgical instrument से कर रहा है. बट ये नहीं है कि कोई भी इंसान जिसके पास surgical instrument है he can perform surgery. It requires strong intellectual skill कि उसको पता हो कि what exactly is the inward sequence of human body or a particular part of body which he or she is performing surgery upon. So the fundamental differentiation between these two is the use or deployability of intellectual skills. So basically profession refers to all those activities where the livelihood is earned by a person by employing their intellectual skill or manual skill but backed by intellectual skill. So it also includes vocation, and vocation क्या होता है? Vocation simply means a way of life for which one has a specific fitness. It does not involve any organized kind of activity like business, but it simply means any way of life that one uses or employs for which one have some specific fitness. ठीक है ना, कोई specific उसके पास fitness, कोई specific चीज़ है, कोई स्पेसिफिक स्किल है जिससे वो कि उस पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को जी रहा है, जो कि नॉर्मली जो है हर कोई नहीं जी रहा. फॉर एग्जांपल even in a decision of a court, it has been held that the practice of a religion also amounts to a vocation. So this is the core definition or core dimensions of what entails a business as well as what entails a profession under the relevant sections of Income Tax Act. अब continuing with the some basics of this topic only, जैसे कि हमने बात करी थी सैलरी का चैप्टर, शायद अगर आप लोगों ने डिस्कशन करी थी या नहीं, और रिलेटिंग टू अदर हेड्स ऑफ इनकम, वी हैव टू डिफरेंट सिस्टम्स बाय विच इनकम्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज वी टॉक्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में भी किया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. सो सम ऑफ द इनकम्स कुड बी दे आर ट्रीटेड ऑन ड्यू बेसिस, जब वो इनकम ड्यू हो गई, मिली चाहे बाद में, रिसिप्ट चाहे बाद में. एंड सम टाइप ऑफ इनकम्स आर टेकन ऑन रिसिप्ट बेसिस, जब वो मिली, ड्यू चाहे पहले हो गई थी, ठीक है, बट वन एक्चुअली दे हैव बीन रिसीव्ड, ओनली देन दे आर कंसिडर्ड. Now this chapter of business and profession is strictly dependent upon the basis of accounting which is followed by that particular assessee. So कोई बिजनेस वाला मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, मतलब ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस सिस्टम यूज कर रहा है बिजनेस वाला, मतलब जब उसको पेमेंट्स एक्चुअली आई हैं या उसने एक्चुअली पेमेंट्स करी हैं.
So either of those system, mercantile system और रिसीप्ट सिस्टम या पेमेंट सिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है, या एक्चुअल पेमेंट सिस्टम भी उसको बोल सकते हैं. सो ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल बेसिकली एम्प्लॉयज ड्यू बेसिस, और जो दूसरी है वो बात कर रहा है रिसिप्ट बेसिस पे, जो हमने दो डिफरेंशिएशन करी थी. सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी वो बिजनेसमैन फॉलो कर रहा है या प्रोफेशनल पर्सन फॉलो कर रहा है, दैट दिस द इनकम, टोटल इनकम दैट विल बी डिराइव्ड अंडर दिस हेड वुड बी कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सेम. Then if the particular assessee is adopting mercantile system, as we talked, incomes or expenditure of that particular assessee will be taken on due basis. So अगर वो mercantile system follow कर रहा है तो इसकी income कैसे हम income और expenditure कैसे compute करेंगे, due basis पे. However, if the following set of expenditures they are always treated on पेमेंट बेसिस, ये जो एक्सपेंडिचर्स है इनको हम हमेशा पेमेंट बेसिस पे ही लेते हैं जब वो दे आर एक्चुअली बीइंग पेड. कोई टैक्सेस हो गए, बिजनेस टैक्सेस, कोई इंटरेस्ट पे किया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को, कोई बोनस और कमीशन पे किया है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के, और लीव एनकैशमेंट, इन 5 तरह के बेसिकली जो हम आइटम्स हैं इनको हम हमेशा पेमेंट बेसिस पे ही, पेड बेसिस पे ही प्रिज्यूम करते हैं. Then all types of reserves and provisions they are basically disallowed under this section except provision for gratuity, which is allowed if it is payable at the time of retirement only. We will be talking about all these provisions, some of deductions rather which are being allowed under this head or which are not being allowed, explicitly allowed or not allowed. Section 36, 37 सबके बारे में बात करेंगे. देन एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट्स के, दे इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन बट एक्सेप्ट 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एंड स्टाफ वेलफेयर फंड है, ये 3 जो है वो डिसअलाउड है, इनकी डिडक्शन अलाउड नहीं है. अगर एम्प्लॉयर या कंपनी इन पे इन 3 कैटेगरीज में अगर कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो अलाउड नहीं है. उनके अलावा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, देन इट कुड बी अलाउड एज डिडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. Then contribution to charities and donations explicitly otherwise they are disallowed. ठीक है, कि कोई बिजनेस चैरिटीज़ में दे रहा है, डोनेशंस में दे रहा है, तो उस केस में उसकी डिडक्शन नहीं, जितना अमाउंट वो क्लेम कर रहा है कि हमने दिया है चैरिटी या डोनेशन में, वो डिसअलाउड है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल एज अ डिडक्शन. एक्सेप्ट हाँ, कुछ डिडक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिटली अलाउ की गई हैं. वो कौन कौन सी हैं? अगर वो बिजनेस या एंटिटी या प्रोफेशनल पर्सन अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस दे रहे हैं, या स्टैटिस्टिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए दे रहे हैं, या रूरल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, या पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड के लिए दे रहे हैं, अगर इन केसेस के लिए इन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं फॉर दीज पर्पज, हु आर वर्किंग फॉर दीज पर्पजेज और विद ऑब्जेक्ट ऑफ दीज डोमेन्स, सो इन दोज केसेस दोज डिडक्शंस, दोज अमाउंट कुड बी यूज्ड एज डिडक्शंस, दोज आर अवेलेबल एज डिडक्शंस. अदरवाइज ऑल काइंड्स ऑफ चैरिटीज और डोनेशंस दे आर एक्सप्लिसिटली डिबार्ड फ्रॉम बीइंग अलाउड एज डिडक्शंस अंडर दिस चैप्टर. अब हमने जब डेफिनेशन करी थी बिजनेस की तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, इफ़ वी रेफर टू द सेम, हाँ, यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज़ किया था एडवेंचर और कंसर्न, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये इस डेफिनेशन में वर्ड आया था. अब इसका रेलिवेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? हमने बात करी कि profit from any single or isolated transaction it could also qualify to be a business profit as well. हमने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, रेपिटेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज़ की बार बार, तभी वो बिजनेस प्रॉफिट या इस हेड में प्रोफेशनल इनकम कहलाएगा. इट कुड बी अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन दैट कुड क्वालिफाई टू बी अ बिजनेस. बट there are certain guidelines in this regard that Supreme Court has given which help us in identifying whether we can treat a particular transaction to be in the form of adventure in the nature of trade or commerce or not. So कुछ guidelines हैं. Otherwise क्या है? Otherwise it will always be dependent upon the concerned transaction. जो भी transaction की बात कर रहे हैं वो transaction के facts और circumstances उस केस को देख के ही हम जज कर पाएंगे कि क्या वो बिजनेस के हेड के अंदर, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर फॉल करता है या नहीं करता है. हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इन दिस
case specifically ITR 609, wherein some referral points are being provided कि जिनको हम consideration में लेके we can make a judgment or decision about whether that particular thing or activity, economic activity qualifies to be in the term of adventure in the nature of trade or not so. वो कौन कौन सी हैं? The first one being, was the purchaser of that particular product or service is a trader, or was the purchase and its resale by that particular person was allied to his usual trade of business. मतलब जो वो बिजनेस कर रहा है क्या उससे रिलेटेड या वैसा ही वो काम था जो उसने सेल और परचेज किया, उन्हीं कोमोडिटीज़ में था, उन्हीं सर्विसेज में था, और क्या वो परचेजर एक ट्रेडर था और उसने वो परचेज करके रीसेल की, और was such activity allied or incidental to his normal course of business or profession he is pursuing. ठीक है. सेकंड क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी क्या था, ठीक है, जो परचेज और रीसोल की गई, और किस क्वांटिटी में परचेज की गई थी वो. अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जो कि नॉर्मली ट्रेडेबल है, ठीक है, और जो क्वांटिटी परचेज की गई उस पर्सन के द्वारा वो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है, चाहे ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन ही है, ये हम बात कर रहे हैं जब सिंगल ट्रांजैक्शन हो उस केस में हमें क्या गाइडलाइंस है. तो चाहे वो सिंगल ट्रांजैक्शन ही है, बट अगर आइटम ऐसी है जो नॉर्मली ट्रेडेबल हो सकती है, होती है, और जो क्वांटिटी परचेज्ड है वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि एक और नॉर्मल पर्सन, रैशनल पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पोजेशन के लिए नहीं रखेगा या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखेगा इतनी, सो उस केस में भी वो क्वालिफाई करेगी इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड ट्रांजैक्शन. Then did the purchaser improved the quality of that particular product that he purchased and only then he resold it. For example, कोई ट्रेडर है उसने चावल खरीद लिए, कोई पर्सन है उसने चावल खरीद दिया, and then he went on polishing those rice. तो चावल की राइस पॉलिशिंग होती है तो उसके बाद it becomes more readily sellable, it fetches a better price. So were any operation being performed that led to improvement in the quality of that product? Then what were the incidents which were associated with purchase or sale? They were similar to operations normally carried out in relation to trade or business. तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी उस पर्टिकुलर परचेज और सेल के, और क्या वो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो थी वो नॉर्मली वो बिजनेस और ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं उसी सीक्वेंस में या उसी सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में थी या नहीं क्वालिफाई करती. Then are the transactions of sale and purchase, they are being repeated, they are then the next point is, does it include a element of pride of possession? Means does that particular person who is a purchaser or who has carried out such a transaction, does the product or service he availed and then resold, or some anyhow it was done, or it was simply purchased and not resold even in any case, resale is not mandatory specifically. So does that person have an element of pride of possession for that particular product or service? If there is a pride of possession means कि वो गर्व महसूस कर रहा है इस चीज़ को अपने पास रखने में या परचेज करने में and so on, तो उस केस में if yes so then it is not considered as a trade, then it could be used treated as a item that or an activity that has been carried out for doing a personal usage or a related thing. Then was the purchase made with an intention to resell it at a profit? So intention is also a very vital clue in deciding whether that particular isolated transaction qualifies to be in the nature of adventure in the form of trade. The intention of purchase, basically it is very important at the time of purchase. If there is a change of intention after some time, then that will not make this transaction as an adventure in the nature of trade. फाइनली जो सिस्टम जो है वो जो कहता है कि क्या ओनस किसके पास है, हु इज़ गोइंग टू हैव एन ओनस टू प्रूव, हु इज़ लाइबल टू प्रूव, हु इज़ हैविंग द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव वेदर दिस एक्टिविटी qualifies to be in the nature of form of adventure in the nature of trade or not so. So दो competing parties है, एक हो गया परचेजर जिसने एक्टिविटी करी, एक हो गया टैक्स डिपार्टमेंट.
सो दोनों में से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज हैविंग द ओनर्स टू प्रूव दैट वेदर द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर person or not so, whether it is a single isolated case or not so. So the law as per Supreme Court judgment in a case puts the onus on the income tax department. They have to satisfy, they have to prove it that the transaction was in the nature of adventure in the form of trade. So it is not on the assessee or the particular person carrying out the transaction, such an isolated transaction, who has to prove it otherwise. It is on the domain of or the responsibility of tax department to imply, to confirm that such a transaction, isolated transaction, was in the form of adventure in the nature of trade and so on. Then चार्जिंग प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इनकम्स हैं जो इस हेड के अंदर क्वालिफाई करेंगी, सेक्शन 28 बताता है। बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, जो हमने बात की, कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वो जो है वो इस हेड के अंदर आएंगी। और बिजनेस बोथ विद इन इंडिया एज वेल एज बिजनेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया, इट इज़ ट्रीटेड ऑन द सेम फुटिंग। मीन्स चाहे बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा हो चाहे इंडिया से बाहर हो, वो दोनों ही इस पर जो है पर्टिकुलर हेड में, इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। फर्दर मोर इलीगैलिटी और लीगैलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑफ नो रेलिवेंस स्पेसिफिकली। तो चाहे वो बिजनेस लीगल बिजनेस है चाहे इलीगल बिजनेस है, तब भी उसकी इनकम इस हेड के अंदर इंक्लूड होगी। सेकेंड पॉइंट इज कंपनसेशन, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2। कोई कंपनसेशन है या कोई अदर पेमेंट है जो ड्यू हो गई उस पर्सन को और रिसीव्ड बाय द पर्सन, दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम। वो कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो किसी भी नाम से, डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, एनी हाउ, हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्सटेंशियली और सिग्निफिकेंटली और कंप्लीटली, और उसकी टर्मिनेशन हो जाती है मैनेजमेंट से, उसको हटा दिया जाता है और सो ऑन। सो उस पर कोई अमाउंट मिला है तो वो उसकी कंपनसेशन मानी जाएगी और वो बिजनेस इनकम के अंडर आएगी। सिमिलरली कोई भी पर्सन, सेम केस, बट जो कंपनी है वो ज़रूरी नहीं अब इंडियन कंपनी हो, कोई और कंपनी हो सकती है। पहले पॉइंट में हमने इंडियन कंपनी बात कर दी, और अब एनी पर्सन बाय वट एवर नेम इट इज़ कॉल्ड, ही और शी इज़ कॉल्ड, ही इज़ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ company in India. That company could be a foreign company as well, or in connection, and amount is being paid in connection or in relation to termination of the office of that particular person concerned, or modification of terms of conditions could be there. ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी उसकी सर्विस की, उसको चेंज कर दिया गया और उसके लिए उसको कंपनसेट किया गया, तो वो भी अमाउंट जो है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। देन कोई पर्सन है जो एजेंसी होल्ड कर रहा है किसी बाहर की कंपनी की, जिसका इंडिया में खुद का फॉर्म से, नाम से नहीं है, बट इट इज़ कैरिंग आउट एजेंसी बिजनेस। तो वो अगर एजेंसी कैरी आउट कर रहा है तो उसके केस में भी अगर एजेंसी उसकी टर्मिनेट कर दी जाती है, उसकी फ्रेंचाइजी या कोई और मॉडिफिकेशंस की जाती हैं टर्म्स कंडीशन में, तो तब भी जो अमाउंट मिलेगा कंपनसेशन का वो बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। देन इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन क्या होती है? बेसिकली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे बिजनेस के सब लोग इकट्ठे हो गए, वो पर्टिकुलर डोमेन के रिटेलर्स इकट्ठे हो गए या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल के इकट्ठे हो गए, और दे आर ऑल दोज हु आर ऑपरेटिंग इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, एंड व्हाट दे फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर व्हाट? फॉर प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट रादर। सो अगर उस ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन को कोई इनकम डिराइव होती है, वो इनकम जनरेट करते हैं फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सर्विस दैट दे प्रोवाइड टू इट्स मेंबर, देन दैट इनकम शैल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम एंड इट शैल बी टैक्स्ड। हाँ, अगर कोई नॉर्मल वो रिसीप्ट्स वगैरह ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फ़ी हो गई, मेंबर कोई जर्नल वो या बुकलेट छाप रहे हैं वो अपनी एसोसिएशन के रिगार्डिंग, कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स के रिगार्डिंग, तो उससे जो अर्निंग्स हैं उसको इनकम नहीं माना जाएगा। और ये प्रोविज़न जो है ट्रेड एसोसिएशन वाली, ये सोशल क्लब्स पे लागू नहीं होती। ठीक है, अब कुछ डिडक्शंस भी अलाउड हैं इनके केसेस में, एसोसिएशन के केस में उनकी इनकम में से। वो कौन सी है कि अगर वो एसोसिएशन अपने मेंबर्स को जो हैं उनको अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है ना, एक्सेप्ट गिविंग एज अ ग्रांट, तो उस केस में, और जो डिडक्शन अगर वो जो क्लेम करना चाहते हैं वो 50% से ज़्यादा ना हो उसकी टोटल इनकम के, तो उस केस में उसको डिडक्शन अलाउड है अपनी टोटल इनकम में से, चाहे उनको नुकसान ही हो रहा हो उस साल पर्टिकुलर एक्टिविटी से या पर्टिकुलर ईयर में। देन एक्सपोर्ट का इंसेंटिव्स, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स होती हैं,
कोई लाइसेंस सेल कर दिया किसी ने अपना, एक्सपोर्ट लाइसेंस था, किसी और को बेच दिया, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 के अंदर ठीक है प्रोविजंस हैं कि यू कैन सेल योर लाइसेंस होते थे। सो अगर किसी ने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस किसी को बेच दिया और उस पर कोई प्रॉफिट कमाया तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कोई कैश असिस्टेंस गवर्नमेंट से ली है या किसी और एजेंसी से ली है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कोई अदर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वापस मिल गई, ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे कहा, तो कुछ ड्यूटी वापस मिल जाती है इफ़ यू एक्सपोर्ट आइटम, पर्टिकुलर आइटम्स, फॉर एग्जांपल डायमंड्स। और अदर के केस में क्या होता है, रफ डायमंड मंगाए जाते हैं, उनको पॉलिशिंग करके अच्छे से जो है डेकोरेबल आइटम्स बना के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो दे गेट ड्यूटी ड्रॉबैक कंसेशंस एज वेल। देन प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक होती है, अगर वो किसी को पास की गई है ड्यूटी रेमिशन के अंदर, तो उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। अगर कोई ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट स्कीम के अंदर कोई आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी जो है आपका बिजनेस इनकम माने जाएगा। सो एक्सपोर्ट के अंदर जो भी इंसेंटिव्स ये सारी फॉर्म्स के आ गए, वो सारे के सारे भी बिजनेस इनकम इस प्रोफेशन और बिजनेस हेड के अंदर माने जाएंगे। देन वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्विजिट्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 28(4), चाहे वो बेनिफिट की वैल्यू मनी में कन्वर्टेबल हो चाहे ना हो, बट इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और ड्यू टू प्रोफेशन दैट पर्टिकुलर, तो उस केस में वो भी इस हेड के अंडर चार्जेबल होगा। सो जो बेनिफिट्स और परक्विजिट्स एम्प्लॉई की सैलरी में टैक्सड हो रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को जो परक्विजिट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो सैलरी चैप्टर के अंदर आते हैं और वो उनकी सैलरी हेडिंग के अंदर ही टैक्स होते हैं। सो सिमिलरली अगर बिजनेस की बात करें या प्रोफेशन की बात करें तो उस केस में अगर उनको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं, तो वो उनके लिए बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के हेड में आएंगे। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसके लिए सैलरी में, और अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है तो उसके केस में अगर कोई बेनिफिट्स परक्विजिट्स कोई मिल रहे हैं तो वो इस बिजनेस इनकम के हेड के अंदर क्वालिफाई करेंगे। देन कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन अनदर देन सैलरी कोई रिसीव कर रहा है पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म से, तो उस केस में भी वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर हेड, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1990s के करीब, 1993 1994 के ऑनवर्ड्स। सो अब इस केस में कोई भी इनमें से अगर फॉल करता है, वो सैलरी ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ भी चीज़ ले रहा है, तो वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी उस पर्टिकुलर पार्टनर की ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। Then any amount which is received under a certain agreement for not to carry out any business or profession, अगर कोई एग्रीमेंट किसी से कर लेता है कि ठीक है मैं ये बिज़नेस अब कैरी आउट नहीं करूँगा या इस पर्टिकुलर एरिया में ये बिज़नेस कैरी आउट नहीं करूँगा, जैसे कि रियल लाइफ में होते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं कि ठीक है वी विल नॉट बी वर्किंग और डूइंग कंडक्ट बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, इस रीजन में नहीं करेंगे या वो बिज़नेस ही नहीं करेंगे, और यहाँ अपनी कोई जो टेक्निकल नो हाउ है, कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो जो है वो किसी से शेयर नहीं करना, उसके लिए अगेंस्ट कोई अमाउंट मिल रहा है। और सो इन सारी चीज़ों से जो भी अगर अर्निंग्स हो रही हैं, इनकम हो रही है, तो वो भी बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर ही जो है वो चार्ज की जाएगी, मानी जाएगी। देन स्पेकुलेशन का बिजनेस है, अगर किसी का स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है, सट्टे स्टाइल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा, वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगा। हालांकि एक चीज़ याद रखने वाली है, जो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स हैं, जो डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं बेसिकली, सो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स जो है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। सो अगर ये जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 5, ठीक है। इट सेज इट इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। सो डेरिवेटिव्स में अगर कोई डील कर रहा है तो वो उसकी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो इसके अंडर स्पेसिफिकली आउटराइटली नहीं आएगी। अब स्पेकुलेशन बिजनेस का इसेंशियल फीचर होता क्या है, क्या चीज़ बताती है कि ये बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस है या नहीं है। स्पेकुलेशन बिजनेस बेसिकली उस तरह की ट्रांजैक्शन को कहते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए सेल और परचेज के लिए, किसी कमोडिटी को, किसी चीज़ के लिए, और चाहे वो शेयर्स हों, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कुछ किसी भी तरह से हो सकती है, एमसीएक्स में भी हो सकती है कमोडिटी के रिगार्डिंग, या शेयर्स इक्विटी में भी हो सकती है, पीरियडिकली जो किया जाए। और बट
ट्रांजैक्शन उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, बट फाइनल जो सेटलमेंट है वो बिना डिलीवरी के हो, और यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी के बिना हो। मतलब जिस प्रोडक्ट पे, कमोडिटी पे, शेयर्स पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसकी डिलीवरी या पोजेशन या ट्रांसफ़र ना हो। मीन्स द ट्रांजेक्शन्स आर सेट ऑफ इन एनी अदर मोड, फॉर एग्जांपल बेसिकली इन कैश जो हम करते हैं। हालांकि डेरिवेटिव्स के केस में भी ऐसा होता है, व्हाट वी डू इज इन रियलिटी इज ट्रांजेक्शन्स आर स्क्वायर्ड ऑफ। एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज में हार्डली the concerned shares or commodities, they are being transferred. So it is basically transactions are squared off in cash only. But जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 इट कैटेगोरिकली सेज कि अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रही है उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानना। Then profit earned from any illegal business that also qualifies to be or becomes part under this chapter। ठीक है जी, बिजनेस चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, जैसे कि हमने शुरू में भी बात करी थी, और वो किस हेड के अंदर होगी, अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो बिजनेस लीगल है चाहे इलीगल है। फर्दर मोर एनी एक्सपेंसेस विच आर बीइंग कैरिड आउट फॉर परफॉर्मिंग इलीगल बिजनेस, तो वो भी अलाउड नहीं है चार्ज करना। मतलब इलीगल बिजनेस की इनकम तो चार्जेबल है, बट अगर कोई खर्चे हो रहे हैं उस बिजनेस में तो वो हम खर्चे माइनस उस इनकम में से या किसी और इनकम में से बिजनेस में से नहीं कर सकते। ठीक है, खर्चे अलाउड माइनस करना नहीं है, इनकम जो है वो ऐड होगी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के अंदर। फाइनली एनी अमाउंट विच इज बीइंग रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर दिस सेक्शन दैट शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, और वो दूसरा पर्सन कौन है, या तो वो उस पहले पर्सन का जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसका एम्प्लॉय है, या वो कोई ऐसे उसके साथ कनेक्शन में है उसके बिजनेस के रिगार्डिंग जो कि बहुत वाइटल पर्सन है। सो उसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो अगर वो ली है और उसके अंदर कोई अमाउंट है, कोई सम रिसीव मिला है, सो उस केस में भी जो अमाउंट है वो माना जाएगा एक बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल income. So then finally transfer of certain assets which have been specified under this section 35 AD, they are to be considered as a income under this head, profit and gains of business or profession। वो कौन कौन से हैं, वो ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट, ठीक है ना, और वो कैपिटल एसेट कौन सा है, लैंड नहीं होनी चाहिए, गुडविल नहीं होनी चाहिए, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, सिक्योरिटीज़, कोई डिबेंचर्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन तीनों के अलावा, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई और कैपिटल एसेट है जो डिमोलिश कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है या ट्रांसफ़र किया है, उससे जो भी गेन्स आएंगे वो चार्जेबल होंगे अंडर द हेड, particularly this head, that is income from business। Furthermore, if whole of expenditure on such asset has also been allowed as a deduction under this section 35 AD। So this is about the basics of this chapter, specifically business and profession। In the next session we will be continuing with the topic itself only, and